I'm starting with the new concept, that is article writing. Before we proceed to the question section, let us understand what are articles. मतलब article writing क्या होता है? एक आपका होता है जो grammatically articles होते हैं, that is part of your determinants. Whereas the second one is एक आपका part होता है the part of determiners a and the. And second one is article writing, which we have right now in our class 12. Let us now understand what is article writing. There are so many issues that goes around. And इनमें से कुछ issues ऐसे होते हैं which needs more attention. Or maybe you want to express your views or anguish, and you must have seen the same thing in letter to the editor. तो जो हम लोग लेटर टू द एडिटर में जो अपना एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द पोर्शन विच इज पब्लिश्ड एज एन आर्टिकल. नाउ आर्टिकल राइटिंग माइट बी an article written for a magazine, and article writing can be written for the newspaper. And in our class 12 we have both the formats. हमारे दोनों formats हैं, that is newspaper as well as magazine. Content में if I talk about the content, there is not much difference. But magazines हमारी होती हैं जो हमारे स्कूल के न्यूज लेटर्स होते हैं, या फिर देयर माइट बी अ स्कूल मतलब जनरल मैगजीन जिसमें हम लिखते हैं. एंड न्यूज़पेपर इज द वन विच इज योर डेली, आपके घरों में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं ये वो, राइट? तो देयर इज बिट डिफरेंस इन देयर फॉर्मेट. उनके फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी एज सच मैटर में ज्यादा नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल, magazine में when we are writing, तो we would be first of all writing the title, and जो हमारा byline होता, byline मतलब कौन उसको लिख रहा है, by whom it is written, that can be written either just after the title or even at end. जब आपका ये मतलब खत्म हो जाता, वहां एंड में भी आप लिख सकते हो. Whereas when it comes to the newspaper, first of all the title and then byline. इसमें हमारा जो byline है that comes just after the title. That is a basic difference. Now news, any article जो है, it doesn't have any fixed tense. उनका कोई टेंस नहीं होता. जैसे आप लोग रिपोर्ट लिखोगे, when you would be doing the report writing, you would see it is written in past tense. Article doesn't have any fixed tense. It can be written as per the situation. Secondly, in an article, if you want to write a beautiful article, you can start with quotes. आप quotation के साथ start कर सकते हो. You can start with example. आप example के साथ start कर सकते हो, और anything which is given आप उसी के साथ लिख सकते हो. तो the very first paragraph जो हमारा होता है, मतलब कि हमारा जो है intro para होता है. Intro about the topic. जो भी हमारा topic है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन द फर्स्ट पैरा. नाउ आर्टिकल कैन बी 3 पैराग्राफ्स और 4 पैराग्राफ्स. आई रिपीट मेनी अ टाइम्स, आई सी कि मैं आप लोगों को 3-4 बोलती हूं, लेकिन आप मतलब मेनी स्टूडेंट्स डोंट राइट इट. तो 3 पैराग्राफ डिवाइड करना है. इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स यू हैव टू डिवाइड इट. 4 कैन बी देयर, नॉट 5. नाउ द सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ जो हमारा होता है वो होता है
डिस्क्रिप्शन. नाउ ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, दिस इज एग्जाम्पल्स, any data if it is given, survey, merits, demerits. मतलब अब ये टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि वो टॉपिक कैसा है, what kind of topic it is. If the topic is telling you about something which is having merits and demerits, like watching TV, ये पेपर का क्वेश्चन है, नॉट माइन, और मतलब दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन. तो इसके आपके मेरिट्स भी हैं. टीवी वॉच करना इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग. सो वी हैव सम, वी गेन इंफॉर्मेशन, इट रिलैक्सेस अस, it gives us some new ideas. At the same time, longer watching can also, it becomes a challenge for us. It can distract us. It can lead to lack of concentration. तो जिनमें आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, you can write both of them. If in your paper, अभी देखिए, अभी आप लोग क्वेश्चंस को देखोगे, there is some data given, you need to explain that data. If any survey is given, do not add anything. अगर आपकी कोई सर्वे दिया हुआ है तो उसको as an example लिखना है. You can take the real life examples and elaborate in the second and third paragraph. And in the conclusion paragraph, you would be giving very important, you would be giving suggestions. You would be giving measures. मतलब इसके बिना आपका आर्टिकल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. It will not be completed if you are not giving the suggestions. मतलब आप उसमें क्या, what you think, what can be done. And of course, in the end, again, you can give quote. It is only you may give, it is not compulsory. So the main points are, it doesn't have any fixed text. It depends आप क्या क्या चीजें बताने वाले हो. Then you can start it with a good example, quote, or anything. We divide it into 3 to 4 paragraphs. First is the intro. Second and third will be the elaboration of the topic. And last but not the least is the conclusion. And if possible, you can use as many quotes as you can within an article. आप आर्टिकल के अंदर अच्छे अच्छे कोट्स यूज कर सकते हो. इफ यू रिमेंबर, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट रिमेंबर, यू वांट टू मेक इट, यू कैन. बट आर्टिकल राइटिंग एक बहुत अच्छी, मतलब उसमें यही होता है. सो इन अनदर वर्ड, इफ आई से आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग जो हम लेटर करेंगे, बोथ ऑफ देम हैव गुड वोकैबुलरी. The only thing is, in an article, most of the time your cues are already provided within the question. Question के अंदर आपको clues मिल जाएंगे. Whereas report is something different, but दोनों में you have an enriched vocabulary. Please do not use the words like nowadays. Nowadays आप तब use करोगे. You need to use it when you want to compare it with something in the past. जैसे पहले ऐसा नहीं होता था. Global warming was not a past problem, but nowadays we can see. But it is a very common scenario that students start the article directly with nowadays. मतलब क्वेश्चन है आपका जो पेपर में आए हैं, moral values. Nowadays children do not have moral values, and when I read it, I think बच्चे अपने बारे में खुद ही लिखते रहते कि हमारे अंदर moral values नहीं. So we need to put it in a coherent manner. Coherent मतलब, first of all, you need to find the cause.
जब हम assertion and reason करते हैं तो हम cause and effect लेते हैं, तो वो जो cause and effect है ना, वही यहां पर भी आता है. Why it happens, why it happens, and उसका क्या consequence होता है. This is what we say as an article writing. Now, first of all, let us come to the question. I am taking a very मैं अभी जो questions ले रही हूँ बिल्कुल new ले रही हूँ. Article writing के अंदर, in your article writing, you can expect anything which has been there in the contemporary world for the past 2 years. आपका जो पेपर है, नॉर्मली द क्वेश्चन पेपर्स आर सेट अराउंड अक्टूबर टू नवंबर, तो वहां तक में आपके जो क्वेश्चंस, मतलब जो भी आपका हो रहा है, दैट मतलब यू कैन एक्सपेक्ट. दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप लोगों के लिए है. Then the World Cup, which was what you call as won by India, it is very important. So anything, now let us इसको हम classify करते हैं into politics, entertainment, sports, the general issues like COVID था तो COVID का एक problem था. Right now there is मतलब कि lots of disturbances in the world, उसको लेकर सोशल मीडिया, सोशल इंटरैक्शंस, ये आपके सारे जो पॉइंट्स हैं. आजकल एक आपने देखा होगा, अभी भी ये भी हम करने वाले हैं, बट सोशल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एनीथिंग विच इज राइट नाउ विद अस, अफेक्टिंग अस, हमें जो अफेक्ट कर रहा है, वो सब हमारे आर्टिकल राइटिंग का एक पार्ट है. एंड क्लास 12 मैं एक चीज सब बच्चों को हमेशा कहती हूँ, कीप न्यूज़पेपर एज योर टूल. पेन है या पेंसिल है कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर अपना टूल बनाओ. बिकॉज इनसाइड द न्यूज़पेपर यू विल फाइंड आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. लाइक रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आप 10 बार न्यूज पढ़ोगे तो आपको रिपोर्ट लिखना आ जाएगा. If you read the newspaper, if you come about the current topics which are there, like अभी नीट की प्रॉब्लम आई, राइट, नीट की प्रॉब्लम आई, दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम which showed that there were so many ambiguities. We don't know, but वो एक प्रॉब्लम आई. देन अभी जो बच्चे इस साल जो बच्चे CUET दे रहे हैं, still they haven't got any admission. Right now it's July 20. Just imagine कब उनका कॉलेज स्टार्ट होगा and when they would start going to the colleges. तो that is a direct effect on your, आप लोगों के लिए भी वो है, because next year you are going to be there. जो बच्चों ने नीट देना है, for them it has become a nightmare. तो एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर, मतलब रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम्स, रिलेटेड टू वर्ल्ड कप दैट इंडिया ने जीता है, तो उससे रिलेटेड, देन विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, तो जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं ना, इनके बेसिस पर हमारा आता है द आर्टिकल राइट. लाइक दिस ईयर लोकसभा इलेक्शंस वर देयर, so you need to keep a watch on the news so that you are able to express your views in a better manner. Right? Let us now come to the question. Please see that what it is written. With the rise of social media platforms and the ease with which information can be shared online, false information can have dire consequences. Dire मतलब बहुत ही बुरा. Write an article, अब यहाँ पर देखिए, now under मतलब कि see here what it is written is write an article for the local daily, यानी कि this is a newspaper article, मतलब आपका मैगजीन नहीं है, ये न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर जो आपके घर के आसपास आता है, राइट. Highlighting the problem of growing menace, menace मतलब problem,
of fake news and misinformation, analyzing the issue and provide suggestions to tackle. अब आपको मैंने एंड में बताया था that you need to write the suggestion, तो वो यहाँ आता है. You are Kavita Banerjee from Siliguri. Use the given cues. अब आप यहाँ पर देख सकते हो. The cues are given. This is a question from the board only. So please make it sure. What is a fake news? Why has it become significant in the age of social media? Analyzing the issue. मतलब अब आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये डाल रहे हो, ठीक है. सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप क्या डालोगे? हाउ डज मिस इन्फॉर्मेशन अफेक्ट पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर. उससे क्या कॉज एंड इफेक्ट. अभी मैंने आपको बताया था दैट कॉज एंड इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है दैट इज हियर. What challenges do individuals and society face in combating this false information? Then हमारा जो suggestion and हमारा perspective कि हम कैसे इसको solve कर सकते. So this is the मतलब कि one question. What measures can social media platform take to address how can individuals critically evaluate the information? I'll give you one example for this, not one, there are so many. How does issue of fake news affect the local community? What local resources or organization can help? तो आपको जो है, you have to take up all these measures. Now you might be looking at one of the very famous एक मतलब आता है, दो न्यूज आते हैं. एक तो आता है कि जो इंडिया का जो नेशनल एंथम है इज इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय यूएन एज द मतलब कि ऐसा एंथम. दूसरा एक और आता है एवरी 15 डेज 20 डेज में आता रहेगा दैट मिस्टर रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे उनका बर्थडे है. मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इन द ग्रुप्स इन द ऑन द सोशल मीडिया such news will be there as a prominent and without. अब हम लोग क्या है, we are all common people, right? और हम क्या करते हैं, पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर्स होते थे which were the authentic one, और न्यूज़पेपर को एडिटोरियल टीम के थ्रू जाना पड़ता है. तो नो न्यूज कैन बी ब्रॉडकास्ट विदाउट द एडिटिंग पार्ट, और वो अभी भी है. लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दे डोंट कम अंडर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. उनका कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होता. सो व्हाट एवर दे फील दे जस्ट पास इट. और कई बार तो आई रियली फील ऐसे ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं विच वी नॉर्मली एक डिसेंट फैमिली यूज नहीं करती. एंड दे माइट बी यूजिंग, कोई भी एक रील बना देंगे, एनीथिंग विच इज जो उनको लगता है दिस इज देयर डाल देंगे. आजकल एक नया चला हुआ है डीप फेक एंड अंडर द डीप फेक यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी किसी की भी शक्ल किसी के ऊपर डाल देते हैं एंड मिस इंफॉर्मेशन गाइड होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज हम अपने सेलिब्रिटीज को, हम अपने स्टार्स को वी टेक इट एज अ रोल मॉडल एंड समटाइम्स ऐसे न्यूज जो है दैट मे टार्निश द इमेज ऑफ दैट पर्सन. अभी recently there was a very fat wedding, Indian fat wedding. So there were so many, false news and false, what do you say, portray of the people. किसी के कैरेक्टर को assassinate करना हमारा काम नहीं है, but they do it. इससे उनकी जो पूरी की पूरी जो उनका जो एक इमेज होता है ना वो खराब हो जाता है. And then what to do? There are so many other issues social platform में, like अभी तो फिर भी बहुत है. There was a period when communalism was spreading like anything. See, we are living in a country for the past so many years. अब अगर हम अलग से we start speaking something, it may ruin us. We have to see that हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं. किसी ने कह दिया ऐसा हुआ है, हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया. I in my house
आई एम वेरी पर्टिकुलर. यू वोंट बिलीव. मतलब कि लीविंग माय इमीडिएट फैमिली, आई डोंट हैव एनी ग्रुप, आई डोंट जॉइन एनी ग्रुप. क्योंकि आई हैड ऑलरेडी मेरा जो इंग्लिश का ग्रुप चलता है, आई हैव माय ग्रुप्स ऑफ विद दी CBSEs, विद दी मतलब कि KV मेंबर्स. तो मेरा BST का चलता है. उन तीनों को छोड़कर आई डोंट जॉइन एनी अदर ग्रुप, nor my family group, nor my friends group, because they go on circulating anything without reading the information. And this is very important. So what can we do? What measures can, as जो social platforms है, they have to be checked. जैसे हमारे न्यूज में we are not supposed to give any news. So we have to check, recheck. There should be some measures. There should be some penalties. और हम as an individual, before passing it to someone else, before commenting on that, we must evaluate. क्या वो सच है? Whether it is, because एक छोटी सी जो गलती होती है ना, that can ruin the entire life of a person. ये आपको उसी के ऊपर लिखना है, right? So I am starting this one as a part of our classroom. Now let us understand. I have not used, see, when we are giving these information, they are very sensitive. So I don't want to take any example, only those examples which have a positive effect should be taken. Now we have started off with the one, मतलब मैंने एक वो लिया, we live in an age where information is just a button press away. You can see the words what I have used. मतलब एक बटन के उसमें हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, right? Then although we are swayed by information, मतलब हम लोग जो है ना, we get what you call as भटक जाते हैं, but yet we want to speak. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज सोशल मीडिया. आपके अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, यहाँ पे स्टार्ट में है कि व्हाट आर फेक न्यूज, व्हाट है, तो हम सोशल मीडिया से स्टार्ट कर रहे हैं कि इट इज द नेम विच सजेस्ट कि वेब ऑफ मीडिया एंड दैट इंटरकनेक्ट्स अस थ्रू प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स. फिर अब हमारा नेक्स्ट क्या है? फेक न्यूज. तो इवन अब जो फेक न्यूज है, इट हैज कम टू द फेकिंग ऑफ पिक्चर्स. उससे क्या होता है, एक हमारी जो सोसाइटी एक हेल्दी जो डेवलप हो रही है, दैट बिकम्स हैम्पर. और आई हैव यूज्ड दिस की rumors spread faster than light. This is just a on the spontaneously बना. और इसी तरीके से ये जो न्यूज होते हैं, दे गेट वायरल ओवरनाइट. तो इससे क्या होता है, when the things become viral, it creates, अब मैंने इसका cause and effect बता दिया. It creates panic, and according to a reliable data, I haven't taken any particular data, reliable हम use करते, the number of users have jumped और easily available है. तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा एक कम्युनिटी या फिर किसी ग्रुप को एकदम से टारगेट भी हो जाता है. पहले क्या होता था, थिंग्स वर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, बट नाउ इट इज अवेलेबल टू एवरीवन. तो किसी को टारगेट करना आसान हो जाता है, और कई बार जो यूथ होते हैं, दे गेट इनटू टेंशन. नाउ जैसे हम जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, और प्लेटफॉर्म का भी यही है. एक तरफ हम कनेक्टेड है, बट दूसरी तरफ क्या बन रहा है, इट इज बिकमिंग द सोर्स ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन. और कलेक्टिवली वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो क्या क्या करना है, इंडिविजुअली हम लोगों की ड्यूटी होती है कि हम इंफॉर्मेशन को आगे पास करने से पहले एक बार इवेल्युएट करें. एंड देन जो गवर्नमेंट है, इट हैज टू, देखिए अभी भी अगर आप देखोगे तो इन ऑन द इंस्टा देयर इज अ कम्युनिटी गाइडलाइंस इज देयर, बट हार्डली डू दे फॉलो. कितने इंफॉर्मेशन होते हैं, दे आर फॉल्स. इफ आई सी 10 information, out of them 9 are false.
but when you report it, they say it doesn't go against our community standards. उनका यही कहना होता है. So इसके लिए क्या जरूरत है, हर एक कंट्री के अंदर अपना गवर्नमेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल इन चाइना so many apps are not allowed. वहां पर दे आर यू आर नॉट अलाउड टू यूज फेसबुक एंड ऑल. तो गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आ सकती है. इट कैन नॉट कंप्लीटली बैन, लेकिन स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आ सकते हैं. लाइक आपको याद होगा टिकटॉक हमारे यहाँ बंद हुआ था. सिमिलरली कुछ रूल्स लेकर आए तो इसका जो मिस यूज है वो भी हमारा जो है इट कैन रिड्यूस. एंड ये एक कोट है, दिस इज एन एक्चुअल कोट बीज इन यू. तो आई हैव टेकन इट. जो हो सच बताओ, फेक नहीं. वी नीड टू बी प्लेटफॉर्म इज टू इंटरकनेक्ट अस, नॉट टू स्वे अवे. तो कई ऐसी ऐसी खबरें होती हैं, देर आर सो मेनी न्यूज विच मतलब कि समटाइम्स इट रियली मेक्स अस लाफ एंड समटाइम्स इट इज और बहुत जल्दी वायरल होते हैं. इवन न्यूज की ऑथेंटिसिटी पता भी नहीं होती, उससे पहले वो वायरल हो जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग, प्रॉपरली इंटरवीन करके इसको जो है थोड़ा सा इंडियन अपना जो जिस कंट्री में रहते हैं उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वी कैन टेक आउट द रूल्स. तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट एन आर्टिकल. यानी कि हमने स्टार्ट किया, दिस इज बिकॉज इज अ न्यूज लेटर. So I have written the byline here. Byline मतलब जो लिख रहा है. Then first paragraph, introduction. Second and third paragraph, the elaboration. Then I have also given the conclusion and the measures which I want. And in between, I have used some quotes which I have formed spontaneously. So this is the first part of what we call as article writing.